السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ریاض۔ ہیڈ لائن آپ نے جانی۔ نئے سال کے آغاز میں مہنگائی کا راج برقرار، کنسٹرکشن مٹیریل بھی مزید مہنگا ہو گیا۔ سیمنٹ کی بوری 1100 روپے تک فروخت ہونے لگی، سریا بھی 270 روپے فی کلو تک جا پہنچا۔ کنسٹرکشن مٹیریل کی دکانوں پر آئے شہری قیمتیں سن کر پریشان ہو گئے۔ سفید پوش طبقے کے لیے گھر کی تعمیر مشکل تر ہو گئی ہے۔ کنسٹرکشن مٹیریل مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ چند ماہ کے دوران تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سیمنٹ کی بوری 1050 سے 1100 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے۔ 1000 اینٹ 16000 روپے میں مل رہی ہے، جبکہ سریا 270 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ میکلور روڈ پر واقع کنسٹرکشن مٹیریل کی دکانوں پر آئے شہری قیمتیں سن کر پریشان، کہتے ہیں اتنی مہنگائی میں تو گھر بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ سیمنٹ، سریا اور اینٹوں کی قیمتیں پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہیں۔ اتنی مہنگائی ہو گئی کہ حد سے زیادہ، غریب آدمی تو اپنا مکان نہیں بنا سکتا، غریب آدمی کوئی ہانڈی نہیں پکا سکتا، غریب آدمی کی جب بہت مشکل ہو گئی۔ مہنگائی بہت ہو گئی، 1050 روپے کی بوری سیمنٹ کی اور 16000 روپے کی 1000 اینٹ ہے۔ یہ دیکھیں کہ غریب آدمی کیسے اپنا مکان بنا سکتا ہے، بچوں کی رزق پورا کرے یا اپنا گھر کا مکان بنائے، کیا کرے آدمی۔ شہری کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں گھر کی تعمیر مشکل ترین ہو گئی ہے، جبکہ کرائے کے مکانوں میں رہنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ کیمرامین محمد سلیم کے ساتھ سلمان طارق، لاہور نیوز۔ سال 2022 گزر گیا مگر مہنگائی کا جن قابو میں نہ آ سکا۔ سردی بڑھتی ہی بجلی کے ہیٹرز اور چولہوں کی قیمتوں میں اضافہ۔ دکانداروں نے الیکٹرانک اشیاء کی قیمتوں کو ڈالر اور پیٹرول کے نرخوں سے جوڑ دیا۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ سردی کی شدت میں اضافہ، گیس کی بندش اور کم پریشر کے باعث الیکٹرانک اشیاء کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ شہری بجلی کے ہیٹرز اور چولہوں کی خریداری میں لگ گئے۔ مانگ بڑھتے ہی بجلی کے ہیٹرز اور چولہوں کے دام میں بھی اضافہ ہو گیا۔ 2 ٹیوب والا ہیٹر 1000 روپے، جبکہ چھوٹے سائز کا فین ہیٹر 3000 سے 3500 روپے میں مل رہا ہے۔ بڑے سائز کے فین ہیٹر کی قیمت 6000 روپے تک جا پہنچی۔ درمیانے سائز کا چولہا 1500 سے 1800 روپے میں دستیاب ہے، جبکہ بڑے سائز کے چولہے کی قیمت 2500 روپے تک ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر چیز پہنچ سے باہر ہو چکی ہے۔ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے پر بھی توجہ دے۔ چولہا لینا ہے اپنے گھر کے لیے، اس کے علاوہ میں نے ہیٹر بھی لینے ہیں جیسے سردی ہے، لیکن جو پرائسز ہیں نا وہ بہت بڑھ چکی ہیں، تو میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا مارکیٹ وزٹ کروں یا یہاں سے سیدھا اپنے گھر چلا جاؤں۔ ڈیزل لینے آئی تھی تو اس کی قیمتیں بہت زیادہ جو آسمان کو چھو رہی ہیں، تو صبح صبح بچوں نے اسکول کے لیے جانا ہوتا ہے، تو اسکول میں جانے کے لیے بچوں کی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ مہنگائی کا ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی چیز 10,000 روپے کی تھی نا پچھلے سال جو ہم نے لیا، تو اب اگر ہم مارکیٹ میں آئیں تو وہی چیز 22-23 ہزار روپے کی ہو گئی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ڈالر اور پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے الیکٹرانک اشیاء مہنگی ہوئیں۔ ڈالر کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں۔ یہ چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ سارے کا سارا اثر ان پروڈکٹ پہ پڑتا ہے جو باہر سے مٹیریل آنے کے بعد یہاں پہ اسمبلنگ ہو رہی ہے۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں۔ نئے سال میں برائلر گوشت کا نیا ریکارڈ، پہلی بار 500 روپے فی کلو سے بھی تجاوز کر گیا۔ مرغی کا گوشت فی کلو 509 روپے کا ہو گیا۔ سبز مسالہ جات اور موسمی سبزیوں کے دام میں بھی کمی نہ آئی۔ عوام کہتی ہے مہنگائی نے جینا دوبھر بنا دیا ہے۔ سال 2022 مہنگائی کے نئے ریکارڈ بناتا ہوا گزر گیا۔ نئے سال میں بھی مزید نئے ریکارڈ بننے کو تیار۔ 2023 کے پہلے ہی روز برائلر کی قیمت نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ مارکیٹ میں پہلی بار برائلر گوشت 500 روپے فی کلو سے تجاوز کر گیا۔ مرغی کا گوشت 12 روپے مزید مہنگا، فی قیمت 509 روپے ہو گئی۔ 2 روز میں برائلر گوشت 35 روپے فی کلو مہنگا ہو چکا۔ فارمی انڈے بدستور 274 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار ہیں۔ عوام بڑھتی ہوئی مہنگائی پر نالاں، کہتے ہیں برائلر گوشت خریدنا خواب بن گیا ہے۔ بہت مہنگا، غریب آدمی دے بس تو باہر ہو گیا جی۔ ہاں جی، دیہڑی ملتی نہیں، غریب آدمی کیا کرے۔ میں نے 400 سے اوپر جاتے نہیں کبھی دیکھا تھا، فرسٹ ٹائم دیکھنا کہ 500 ہو گیا ہے۔ بڑا مشکل گزارا، غریب بندہ تو کھانا کیا دیکھنا بھی مشکل ہو گیا اس ٹائم تو۔ دوسری جانب سبزی مارکیٹ میں بھی مہنگائی کے ڈیرے ہیں۔ پیاز، ٹماٹر، لہسن اور ادرک کے دام کم نہ ہوئے۔ پیاز کا سرکاری نرخ 200 روپے فی کلو مقرر، تاہم اوپن مارکیٹ میں پیاز درجہ اول 220 روپے فی کلو ہے۔ ٹماٹر 80، لہسن 350 اور ادرک 450 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ آلو 50، پھول گوبھی 60 اور بند گوبھی 40 روپے فی کلو فروخت۔ شلجم، پالک، مولی 40 روپے، جبکہ گاجر 50 روپے فی کلو میں مل رہی ہے۔ سرکاری ریلز پر عمل درآمد نہ ہونے سے عوام کو مہنگائی کا دوہرا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔
नए साल में भी आवाम की परेशानी कम न हुई। साल 2023 के पहले दिन महंगाई का राज बरकरार। शहर में लगे इतवार बाजार भी महंगे बाजार बन गए। बढ़ती कीमतों से परेशान शहरी बिलबिला उठे। आवाम ने हुकूमत से रिलीफ देने की अपील कर दी। महंगाई से परेशान शहरियों के बारे में आपको ये बताएं कि उनकी जानिब से दुहाई दी जा रही है कि महंगाई में कमी की जाए। साल 2023 का पहला रोज और महंगाई का राज। शहर के मॉडल बाजारों में हर चीज की कीमत आसमान से बातें करने लगी। आलू, टमाटर, लीमू, प्याज, खीरा और दीगर सब्जियां और फल हाथ ना लगाने दें। किचन और खाने पीने की अशिया की दिन ब दिन बढ़ती कीमतों से परेशान शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका। हुकूमत हमें रिलीफ दे और कीमतें कम करे। किसी चीज में कोई रियायत नहीं है। दिन ब दिन जनाब ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई हो रही है। इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। पहले तो हमारा गुजारा होता था, हमारे बच्चे स्कूल जाते थे, अब तो स्कूल भी नहीं जाते बच्चे। अब तो इतने पैसे नहीं कि बच्चों के लिए कपड़े खरीदें, जूती खरीदें। शहरियों का मजीद कहना था कि अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो गरीब आदमी फाकों से मर जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ेंगे, आपको ये बताएं तरमा में सस्ते गर्म मलबूसात की खरीदारी। छुट्टी के दिन शहरियों ने बड़ी तादाद में लंडा बाजार का रुख किया। अवाम ने कहा कि महंगाई के असरात लंडा बाजार पर भी नुमायां हैं। लंडा भी बहुत महंगा हो चुका है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लंडा बाजार में भी महंगाई का बाजार गरम मलबूसात की खरीदारी के लिए शहरियों का लंडा बाजार में रश। गरीब की लिबर्टी मार्केट में भी महंगाई ने डेरे डाल लिए। जैकेट, कोट, जर्सियां, जराबें और दस्ताने लंडा बाजार में दुकानदारों के रेट मन माने। गुज़िश्ता साल की निस्बत अशिया की कीमतें दुगनी हो गई हैं। लंडा बाजार में जर्सी 700 से 1000 रुपए तक मिल रही है, जबकि मयारी कोट 3 से 4000 रुपए में बेचा जा रहा है। गरम जराबें 100 से 150 रुपए तक फरोख्त हो रही हैं। दस्ताने 300 से 400 रुपए तक दस्तयाब हैं। बोर्ड वाला चौक हाजी कैंप लंडा बाजार में आए शहरियों ने महंगाई का शिकवा किया। कहते हैं सस्ते बाजार बस नाम के सस्ते रह गए हैं। लंडा बाजार में हर चीज की कीमत दुगनी हो गई है। सफेद पोश तबका जाए तो किधर जाए। हाजी कैंप लंडा बाजार में रश के बायस शहरी को पार्किंग के मसाइल का भी सामना है और ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर होने लगी है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। नए साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई के खिलाफ पहली एहतजाजी रैली निकाली। रैली आज़ादी चौक से शुरू होकर यतीमखाना चौक पर ख़त्म हुई। लोग महंगाई से शदीद तंग आ चुके हैं, हुकूमत को घर भेजेंगे। मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है, PTI रहनुमाओं का खिताब। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पीटीआई की लाहौर में रैली। आज़ादी फ्लाईओवर से डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में रैली का आगाज हुआ। कारकुनों की बड़ी तादाद रैली के साथ शरीक रही। रैली आज़ादी चौक, सिविल सेक्रेटरीट, चौबुर्जी और समनाबाद से होती हुई 2 घंटे की मुसाफत तय करके यतीम खाना चौक पहुंची। पुरजोश कारकुन जगह जगह नारेबाजी करते रहे, तरानों पर झूमते रहे। यतीम खाना चौक पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां हमाद अजहर, मियां महमूदुर रशीद और मियां असलम इकबाल ने अपने खिताब में कहा, इमरान खान की हुकूमत बैरूनी साजिश से हटाई गई और अब लोग महंगाई से शदीद तंग आ चुके। हुकूमत को घर भेजेंगे। मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। इमरान खान ने जो जिहाद शुरू किए वो जिहाद का साल है। हम इस इम्पोर्टेंट हुकूमत और ये जो बाहर की बैरूनी ताकतें हैं तुम्हारे मसलों में दखल अंदाजी करते हैं, उनसे इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे। आज इस रैली ने साबित कर दिया है कि अगर कोई इस मुल्क पे हुकूमत करने की इस वक्त सलाहियत रखता है, किसी को अवाम की हमायत हासिल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ। जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर आकर हुक्मरानी करेंगे, अब गरीब आदमी जाग पड़ा है। अब गरीब आदमी इनको इक़्तिदार के ईवानों से निकालकर इंशाअल्लाह बाहर फेंकेगा। पीटीआई रैली के दौरान ट्रैफिक निजाम में खलल के बाइस कई एक जगहों पर माहौल कशीदा नजर आया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि कौम तैयारी कर ले, मज़ीद महंगाई आने वाली है। सनतें बंद हो रही हैं और सनतकार बाहर जा रहे हैं। 7 माह में 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क को छोड़ कर गए। IMF के पास ना गए तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा।
ज़मान पार्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू और कौम से मुखातिब होकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि पहली मर्तबा देख रहा हूँ मेरा मुल्क एक कौम बनने जा रहा है, मेरी जान को खतरा है लेकिन मुल्क नहीं छोड़ूंगा, इनका मुकाबला करूंगा। मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है, कभी डिस्क्वालीफाई करेंगे, कभी इसको निकाल लेंगे, कभी जेल में डालेंगे, मेरे लोगों के ऊपर केसेस हैं, तो क्या हम मुल्क छोड़ के तो नहीं बाहर भागे? मैं तो यहीं खड़े होकर इसका मुकाबला करूंगा, जान को खतरा है लेकिन मैं यही मुकाबला करूंगा। इमरान खान का कहना था कि तबाही से निकलने का एक ही रास्ता है कि कौम एक हो जाए। जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो हमने पैसा इकट्ठा किया, हमने नौशहरा में अरबों रुपए लगाकर बंद बनाए। पख्तूनख्वा का आप ये देख लें कि उन्होंने जो नौशहरा जो सबसे ज़्यादा वनरेबल होता है जब सैलाब आता है, तो उन्होंने जो बंदे हमारी हुकूमत के दौरान अरबों रुपए के जो बंद बनाए थे उसने नौशहरा को बचा लिया। क्रिकेट बोर्ड के हवाले से इमरान खान का कहना था कि नजम सेठी का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, रमीज राजा ने क्रिकेट को फायदे दिए। नजम सेठी को लाने के लिए क्रिकेट बोर्ड का आइन तब्दील करना पड़ा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक कहते हैं इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में जब लोगों पर केसेस बनाए उस वक्त एक भी वादा मुआफ़ गवाह नहीं बना। अब वादा मुआफ़ गवाहों की लंबी लाइन लगी है। जिन बेसाखियों पर उन्होंने 2018 में इलेक्शन लड़ा अब वो एतबार नहीं करेंगे। खान साहब सब एहसान करने वालों को फरामोश कर बैठे हैं। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। गाजियाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अयाज सादिक का कहना था कि घड़ी किसी की ज़ात के लिए नहीं, मुल्क के लिए तोहफा था। क्या मदीना की रियासत के सियासतदान ऐसी बातें करते हैं? 6 अरब के हीरों के हार और घड़ियां मौसूफ ले गए और मदीना रियासत की बात करते हैं। कहते हैं कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा। मुनाफकत है ये, मुनाफकत, झूठ है ये। अयाज सादिक का कहना था आजकल खबर चला दी कि मखलूत हुकूमत बनने लगी है। इमरान खान पर जिसने एहसान किया उसी को उसने डसा है। इमरान खान चाहते हैं कि एनआरओ मिल जाए, अब ऐसा नहीं होगा। ये हर उस चीज से बचना चाहते हैं जहां नजर आता है ये चाहते हैं कि किसी तरह ये हुकूमत चली जाए और मखलूत हुकूमत आ जाए। शायद मुझे भी एनआरओ मिल जाएगा, शायद मुझे भी किसी तरह बचत हो जाएगी। अब बचत नहीं होगी। अयाज सादिक ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल कहते हैं कि इमरान खान ने मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया। नौकरियां देने और घरों की तामीर के दावा करने वाला मुल्क में बेरोजगारी का सुनामी ले आया। राहील अली की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल की अपने इंतखाबी हल्का में आमद। लीगी कारकुनों ने वफाकी वज़ीर बनने पर राना मुबशर इकबाल का ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया और गुलदस्ते पेश किए। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने ख़ियाबान अमीन में कारकुनों से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। नौकरियां देने और घरों की तामीर का दावा करने वाला मुल्क में बेरोजगारी का सुनामी ले आया। मुल्क को तबाही के दाने पे ले गए हैं पीटीआई वाले। इन्होंने मुल्क को यहाँ पे बेरोजगारी कर दी है। इन्होंने वादा किया था 50 लाख घरों का, एक घर नहीं बनाया। इन्होंने 50 करोड़ नौकरियों का दावा किया था, 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया था, एक नौकरी नहीं दी। इन्होंने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत का दावा किया था, वो नहीं पूरा किया। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने कारकुनों से मुलाकात में इलाके के मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन यासिर रफ़ीक के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। राहील अली की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। गवर्नर सिंध की बात करेंगे जो दौरा लाहौर पर हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी कहते हैं पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। अगर वादा पूरा ना किया गया तो फिर हमारे रास्ते जुदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। गवर्नर सिंध की गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से भी गुफ्तगू शुनीद हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने दाता दरबार पर भी हाज़िरी दी।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने लाहौर में दाता अली हजवेरी के मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह ख्वानी की और दुआ की। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने पीपल्स पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया। बोले, अगर वादे पूरे ना किए गए तो MKM पाकिस्तान फिर अपना फैसला करने में आज़ाद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी ये कहा है और बारहा कहा है कि जो चीज़ें भी उन्होंने MKM पाकिस्तान के दोस्तों के साथ राइटिंग में तय की हैं, दस्तखत किए हैं, उसे पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो MKM पाकिस्तान के दोस्त हैं वो फिर कोई फैसला करने के लिए आज़ाद होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात हुई। बैनुल सूबाई हम-आहंगी और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मजमूई मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर सिंध ने अल्ताफ़ हुसैन बारे सवाल पर वाज़ेह जवाब देते हुए कहा कि अल्ताफ़ हुसैन का मसला रियासत के साथ है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में साल 2022 हंगामा खेज रहा। साल 2022 ने 3 वज़राए आला देखे। उस्मान बुज़दार ने पौने 4 साल का वक्त गुजारा। हमजा शहबाज महज 88 दिनों के वज़ीर आला साबित हुए। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ारत आला के ओहदे के साथ नए साल में दाखिल हो गए। PTI के सप्तान खान जहां स्पीकर की सीट पर बराजमान तो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी अपने ओहदे से फारिग हुए। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की पंजाब असम्बली का साल 2022 हंगामा खेज रहा। उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला रहने तक तो ऐवान में कदरे सुकून रहा, ताहम उनकी तब्दीली के साथ ही इक़्तिदार के लिए म्यूजिकल चेयर का खेल शुरू हो गया। 16 अप्रैल 2022 के इजलास में बदतरीन हंगामा आराई देखने को मिली। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर हमला हुआ और तारीख में पहली बार पुलिस ऐवान में दाखिल हुई। तहरीक इंसाफ के बागी अरकान की हिमायत से हमजा शहबाज 88 दिनों के लिए वज़ीर आला बन गए। चौधरी परवेज़ इलाही ने बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली को ताले लगा दिए तो PDM की सूबाई हुकूमत को बजट इजलास ऐवान इकबाल में करना पड़ा। PTI के मुनहरिफ अरकान असम्बली को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन में PTI ने कामयाबी हासिल की तो चौधरी परवेज़ इलाही 27 जुलाई 2022 को वज़ीर आला पंजाब बन गए। मुस्लिम लीग नून ने परवेज़ इलाही को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर ने एतमाद के वोट का कह दिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने 2 रोज बाद एतमाद का वोट ना लेने पर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया, मगर अदालत ने परवेज़ इलाही को दोबारा बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल कर दिया। सप्तान खान के लिए 2022 का साल अच्छा रहा और स्पीकर पंजाब असम्बली बन गए। 2022 में सियासी जमातों की तरजीहात लोटा करेसी और अरकान की वफादारियां तब्दील करने में लगी रहीं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। सिनफ़े नाजुक से सिनफ़े आहन तक का सफ़र मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन हरगिज़ नहीं। बस हिम्मत और हौसला होना चाहिए। इस बात को पूरी तरह साबित किया है रेलवे पुलिस स्टेशन में तैनात होने वाली पहली खातून SHO ने। ख़वातीन के लिए खुद इन्हिसारी कितनी अहम है, सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। इसमें कोई शक नहीं कि ख़वातीन को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। ख़वातीन खुद को हर तरह के हालात के मुताबिक ढालने की भरपूर सलाहियत रखती है। इस बात को पूरी तरह से साबित कर रही हैं नौशीन कंवल, जिन्हें रेलवे पुलिस स्टेशन मुगलपुरा में पहली खातून SHO के तौर पर तैनात किया गया है। फीमेल पुलिस ऑफिसर फीमेल के केसेस जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं। हैरेसमेंट के, रेप के, एब्डक्शन के इस तरह के केसेस फ़ीमेल ख़वातीन जो है वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से, और एक फ़ीमेल एक्यूज़ड है या फ़ीमेल विक्टिम है तो वो फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर को ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा वाज़ेह तरीके से ऐसी बातें भी बता सकती है जो वो किसी मेल ऑफिसर को ना बताती हो। 1982 में कायम होने वाले इस पुलिस स्टेशन में तैनात होने वाली नौशीन कंवल के लिए अपने फ़राइज़ की अंजाम दही बहरहाल आसान नहीं है। खालिसतन मर्दाना माहौल में पेशा वाराना सलाहियत की अंजाम दही के दौरान इन्हें बेशुमार मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं ना कि हौसला जवां हो तो फिर कोई रुकावट आड़े नहीं आ सकती। ख़वातीन अपनी ज़िंदगी किसी पर इन्हिसार करके ना गुजारें, बल्कि अपने बलबूते पर खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर अपने जो रोज़गार हैं वो
हासिल करें। इस खातून ऑफिसर की तैनाती दीगर खवातीन के लिए एक पैगाम भी है कि खवातीन के लिए खुद इन्हिसारी कितनी अहम है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। महकमे पुलिस के आला अफसरान के अजीज कानून से बालातर निकले। DIG ट्रैफिक के भांडे की तलाशी और क्वाइफ चेक करना महंगा पड़ गया। ASI शकील को मुअत्तल कर दिया गया। दूसरी जानिब DIG रॉ अब्दुल करीम ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि ASI शकील और उनके भांडे का मुअत्तली से एक रोज़ कबल झगड़ा हुआ था, जिसकी मज़ीद इंक्वायरी जारी है। जबकि SP सिविल लाइन्स ने बताया कि नौजवान के मुताबिक ASI ने तल्ख कलामी के दौरान हाथ उठाया था। वाक़े की इंक्वायरी और तहकीकात जारी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का साल 9 के मौके पर कहना है कि 2023 पाकिस्तानी कौम के लिए अज़्म नौ की खुशखबरी है। नए साल में पुरानी अदावतें भूलकर मोहब्बतें बांटें। दुआ है कि नया साल वतनी अजीज़ में मुआशी सियासी इस्तेहकाम और खुशहाली लाए। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि नए साल में जोश व जज्बे के साथ वतनी अजीज़ की तरक्की के लिए काम करने का अहद करते हैं। 2023 में भी अवाम की फलाह बहबूद का मिशन जारी रखेंगे। दीन की खिदमत का जो बेड़ा उठाया है उससे मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि नया साल रोशन मुस्तकबिल, मजबूत इकॉनमी, तरक्की की खुशखबरी और उम्मीद बनकर तुलू होगा। माजी से सबक सीख कर मुस्तकबिल में इस्लाह के अज़्म के साथ आगे बढ़ना है। मजहबी रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए कैथेड्रल चर्च में नए साल की मुनासबत से तकरीब का अहतमाम किया गया। बिशप फ्रांसिस शाह, मौलाना आसिम मखदूम और दीगर रहनुमाओं ने दुआया तकरीब में खुसूसी शिरकत की। मजहबी रवादारी हम सब की जिम्मेदारी। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में नए साल की आमद पर खसूसी तकरीब सजाई गई। मसीही बरादरी ने भी नया साल खूब जोशो खरोश से मनाया। कैथेड्रल चर्च में मुस्लिम और मसीही रहनुमाओं की जानिब से खसूसी दुआया तकरीब हुई। बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह, मौलाना आसिम मखदूम और दीगर रहनुमाओं ने नए साल का केक काटा। मुस्लिम और मसीही रहनुमाओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर नए साल की मुबारकबाद दी और दुआ की कि नया साल मुल्क में सियासी व इक्तसादी सूरत हाल के लिए बेहतर साबित हो। आज नया साल है और आपने देखा कि यहाँ पर तमाम मज़हब और मसलक के लोग भी हैं और हम सब ने मिलकर दुआएं की हैं और हमारी दुआ है कि 2023 का साल हर दिन हम सब के लिए, मुल्क के लिए तरक्की, कामयाबी, खुशहाली का साल हो और तमाम मज़ाहिब मसलक के लोग भी आपस में और ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से रहें। अगर तमाम मज़ाहिब के जो मानने वाले हैं उन्होंने ये पैगाम दिया है कि जिस जज्बे से हमने पिछले साल अमन और रवादारी का काम किया है, उसी जज्बे से बल्कि उससे नए जज्बे और नए वलवले के साथ हम 2023 में नए आने वाले साल में अमन और रवादारी और मोहब्बत का पैगाम देंगे। मसीही बरादरी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नया साल सबके लिए खुशियों से भरपूर साल हो। हमारी उम्मीद है कि खुदा ये जो साल है, नया साल है, इसमें खुशहालियाँ आएंगी और उम्मीद है कि सब बहुत ही खुशहाल रहेंगे। नया साल हर एक के लिए खुशियाँ लाए और जो भी कमियाँ परेशानियाँ हमारी लाइफ में जो मुश्किलात है, खुदावंद उनको दूर करे। तकरीब में शरीक बच्चों में नए साल का केक तकसीम किया गया। साल 2022 में 3 हुकूमतें बदली मगर एजुकेशन सेक्टर के हालात न बदले। स्कूलों में 1 लाख असातिज़ा की सीटें खाली। नई जामियात के ऐलान भी ऐलानात तक महदूद रहा। तलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का मनसूबा भी तर्क कर दिया गया। आतिफ परवेज की रिपोर्ट। साल 2022 एजुकेशन सेक्टर पर भारी रहा। स्कूल एजुकेशन में मॉडल स्कूलों का मंसूबा मुकम्मल न हुआ। लाहौर के स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी न लगाए जा सके। लाहौर के स्कूलों में इजाफी क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी भी न मिली। खतरनाक इमारतों की तामीर नो का मंसूबा भी इल्तवा का शिकार रहा। लाहौर में पहले ट्रांसजेंडर स्कूल का मंसूबा 6 माह के इल्तवा के बाद मुकम्मल हुआ। महकमा स्कूल एजुकेशन में अफसरान की तब्दीली की वजह से पॉलिसीज पर अमल दरामद न हो सका। असातिज़ा की तरक्कियां ताहाल इल्तवा का शिकार हैं। यकसा निसाब का दूसरा फेज भी हुकूमतों की तब्दीली की नजर हुआ। सूबे के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की 1 लाख सीटें खाली पड़ी हैं, जिन पर 16,000 असातिज़ा की भर्ती का ऐलान हुआ, जो ताहाल ऐलान तक ही महदूद है। नई जामियात का ऐलान हुआ मगर ताहाल यूनिवर्सिटीज कायम न हो सकी। पंजाब यूनिवर्सिटी समेत सूबे की 4 जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं। सूबे के 6 तलीमी बोर्ड में भी मुस्तकिल सरबराहान नहीं है। सूबे के 100 से ज्यादा कॉलेजेस में
मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती भी इल्तवा का शिकार रही। कॉलेजेस के असातिज़ा ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए 30 से ज़ायद दिन तक धरना दिया, मगर ताहाल उनके मुतालबात पूरे न हुए। आपको इस खबर के बारे में बता रहे हैं कि साल 2022 में 3 हुकूमतें बदली लेकिन हालात ना बदल सके। साल 2022 में सेशन अदालतों की अगर बात करें तो सेशन अदालत में मुख्तलिफ नौइयत की 99,000 से ज़ायद दरख्वास्तें और मुकदमात दायर हुए। पुलिस 34,166 मुकदमात के मुलजिमान को इंदराज मुकदमा के बाद गिरफ्तार न कर सकी। नुमान नूर की रिपोर्ट। सेशन अदालत में दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी की 34,166 दरख्वास्तें दायर हुई। दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी की 9,055 दरख्वास्तें दायर की गईं। 740 साइलीन ने दरख्वास्त जमानतें मनसूख करने के लिए अदालतों से रुजू किया। पसंद की शादी के लिए 2,856 जोड़ों ने अदालत से रुजू किया। अंदराज मुकदमा की दरख्वास्तों के लिए 17,558 साइलीन अदालत पहुँचे। अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए 3,990 साइलीन दाद रसी के लिए आए। हरासा करने के खिलाफ 10,618 साइलीन ने अदालत से रुजू किया। मुकदमात की जल्द समाअत और फैसले के लिए 2,880 दरख्वास्तें दायर हुई। जायदाद पर गैर कानूनी कब्जे के लिए 295 मुकदमात दायर हुए। सिविल मुकदमात के फैसलों पर अमल दरामद के लिए 1,090 साइलीन, जबकि सिविल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ 4,550 साइलीन ने अदालत से रुजू किया। 1,478 साइलीन ने फैमिली केसेस के खिलाफ अपीलें दायर की। 492 साइलीन ने किराएदारी अपीलों के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की। 195 साइलीन ने गार्डियन फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की। 2,345 साइलीन ने सिविल अदालतों के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की। जायदाद की हवालगी और फैसलों के खिलाफ 696 दरख्वास्तें दायर की गईं। रकूम की रिकवरी के लिए 401 दरख्वास्तें अदालत पहुंची। माल मुकदमा की सुपरदारी के लिए 158 साइलीन ने अदालत रुजू किया। साल 2022 में ज़िली अदालतों में 91 एडिशनल सेशन जजेस और कचहरियों के 66 जुडिशल मजिस्ट्रेट्स ने साइलीन को इंसाफ फराहम किया। कैमरा टीम के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। शादी का बंधन कुछ जोड़ों के लिए सूत के कच्चे धागे के मानिंद होता है। साल 2022 में अदालतों के जरिए तलाक के केसेस में 20% इजाफा हुआ। लाहौर की 12,152 खवातीन ने अदालतों के जरिए ज़िंदगी के सफ़र में रास्ता बदल लिया। कुछ रास्ते और रिश्ते मुश्किल हो जाते हैं, ऐसा ही कुछ शादीशुदा जोड़ों का मामला है। साल 2022 में तलाक के केसेस में 20% इजाफा हुआ। साल 2022 में 12,152 खवातीन ने लाहौर की अदालतों से खुला के फैसले लिए। किसी ने शोहर को कामचोर और निखट्टू बताया तो किसी ने घरेलू तशद्दुद को बुनियाद बनाया। लाहौर की 8 फैमिली कोर्ट्स में खुला के 14,532 नए केसेस साल 2022 में दायर हुए। 12,152 खवातीन को खुला की डिग्रियां जारी हुई और अभी भी 7,567 केसेस अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। वकला खुला के केसेस की बड़ी वजह अदम बर्दाश्त को करार देते हैं। लोकल गवर्नमेंट है नहीं, लोगों को ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर। फैमिली लॉज में भी कुछ तरामीम करनी पड़ेगी। अगर हम ADR का निज़ाम ले आएँ तो मैं समझता हूँ उससे खुला वाला निज़ाम जो है ना वो बहुत बेहतर हो जाएगा। हमारे अंदर अदम बर्दाश्त का जज्बा हो रहा है जी। जब तक एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा ख़ानदानी निज़ाम कामयाब नहीं रह सकता जी। एक दूसरे के ऊपर सिर्फ बोझ बनकर रहना, एक दूसरे को समझना नहीं, लाइक माइंड ना होना, ये चीज़ें बड़ी कंस्पिक्वस हैं इस चीज़ में कि जो बहुत ज़्यादा तलाक की रेशो बढ़ रही है। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक रवां बरस लाहौर की फैमिली अदालतों ने योमिया 33 खवातीन को खुला की डिग्री जारी की, जबकि खुला के लिए 39 खवातीन ने अदालतों से रुजू किया। कानूनी माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर मियाँ बीवी छोटी छोटी बात को अना का मसला न बनाएं तो कई घर टूटने से बच सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद शफाक, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली से आपको खबर दें कि साल 2022 में अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में पंजाब असम्बली का 78 करोड़ 35,52,000 रुपये का खर्चा हुआ। हर रुकनी असम्बली एक साल में 21,12,000 रुपये वसूल करता है। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली का 371 का ऐवान, अरकान की मोटी तनख्वाहें और मराद। तनख्वाहों में इजाफे के बाद हर रुकन की बुनियादी तनख्वाह 76,000 रुपये मुकर्रर। माहाना फ़ोन अलाउंस 10,000 रुपये, इमदादी अलाउंस 15,000 रुपये बनता है। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 10,000 रुपये, जबकि 50,000 रुपये हाउस अलाउंस मिलता है। यूटिलिटी अलाउंस 15,000 रुपये माहाना है। तनख्वाह और तमाम अलाउंसेस मिलाकर रुकन को माहाना 1,76,000 रुपये मिल रहे हैं। अरकान पंजाब असम्बली ने साल 2022 में तनख्वाहों और अलाउंस
अलाउंसेस की मद में 78 करोड़ 35 लाख 52 हजार रुपए वसूल किए। पंजाब असेंबली और कमेटियों के इजलासों के दौरान तमाम अराकीन को एजाजिया और अलाउंस अलग से दिया जाता है। एक तरफ भारी मुआवजे और सहूलियात तो दूसरी जानिब 2022 में भी अराकीन असेंबली की कारकर्दगी मायूस कुन रही। मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। 2022 में शहर लाहौर पर महंगाई का राज रहा, डॉलर गायब रहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, गंदम, आटा, नान, रोटी, दूध, दही, गोश्त, काले, सफ़ेद चने और 5 दालों की कीमतों को 100 गुना इजाफा हुआ। साल 2022 में शहरी महंगाई के हाथों पिसते ही रहे। इमरान अकबर की रिपोर्ट। साल 2022 अवाम पर महंगाई का बोझ बनकर छाया रहा। गंदम 1400 रुपए से बढ़ाकर 2300 रुपए फी मन की गई। फी किलो आटा 40 रुपए से बढ़कर 80 रुपए फी किलो हो गया। रोटी की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 14 रुपए की गई। नान की कीमत 12 से बढ़ाकर 24 रुपए की गई। दूध की कीमत 80 रुपए से बढ़ाकर 140 रुपए मुकर्रर हुई। दही की फी किलो कीमत 90 से बढ़ाकर 160 रुपए फी किलो तक पहुंची। गोश्त 700 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए किलो तक जा पहुंचा। चावल बासमती सुपर नया 155 रुपए से 255 रुपए फी किलो हुआ। 2022 में दाल चना बारीक 130 रुपए से 205 रुपए फी किलो की गई। दाल चना स्पेशल 135 रुपए से 215 रुपए फी किलो हो गई। दाल माश 205 से बढ़ाकर 335 रुपए फी किलो कर दी गई। मूंग दाल छिलके वाली 135 रुपए से बढ़ाकर 225 रुपए फी किलो हो गई। काले चने 200 रुपए और सफेद चने 285 रुपए फी किलो हो गए। कीमतों के सरकारी निर्खनामे का तयन जिला इंतजामिया लाहौर ने स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया। महंगाई ने गरीब से उसकी सस्ती सवारी भी छीन ली। साल 2022 में मोटरसाइकिल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मोटरसाइकिल साज कंपनीज साल भर कीमतें बढ़ाती रहीं। नई मोटरसाइकिल की कीमत में हज़ारों नहीं लाखों रुपए का इजाफा कर दिया गया। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। साल 2022 में मोटरसाइकिल साज कंपनियों ने कीमतों में इजाफे की रेस लगाए रखी। होंडा, यामाहा और सुजुकी कंपनी ने अपने तमाम मॉडल्स के दाम बढ़ाए। होंडा कंपनी की 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत 1 जनवरी 2022 को 94,900 रुपए थी, जो कि 26,600 रुपए इजाफे के साथ 1,21,500 रुपए हो गई। होंडा 125 मोटरसाइकिल की कीमत 1,52,000 रुपए थी, जो बाद में 33,400 रुपए इजाफे के साथ 1,85,900 रुपए मुकर्रर हुई। सुजुकी कंपनी ने भी अपने दाम में मन माना इजाफा किया। सुजुकी कंपनी ने GD 110 की कीमत में 40,000 रुपए का इजाफा किया, जिसके बाद मोटरसाइकिल की नई कीमत 2,44,000 रुपए मुकर्रर की गई। इसी तरह सुजुकी ने अपने मॉडल GS 150 SE की कीमत 34,000 रुपए बढ़ाकर 2,66,000 रुपए मुकर्रर की। सबसे ज्यादा यामाहा की जानिब से कीमतों में इजाफा किया गया। 1 जनवरी को यामाहा YBR 125 की कीमत 2,11,000 रुपए थी, जो बाद में 1,25,000 रुपए इजाफे के साथ 3,36,000 रुपए की हो गई। यामाहा YBR 125G 2,20,000 रुपए से बढ़कर 3,49,500 रुपए की कर दी गई। खरीदारों का कहना है कि अब मोटरसाइकिल गरीब की सवारी नहीं रही, नहीं तो दूर की बात पुरानी मोटरसाइकिल खरीदना भी आसान नहीं रहा। जो महंगाई हो रही है, खाली बाइकों की नहीं, हर जगह महंगाई हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी हुकूमत इस बारे में गौर नहीं कर रही। इतनी हाई पहुंच चुकी है, उनकी कीमतें आसमान तक जा चुकी है, तो हर गरीब आवाम के लिए बड़ा मुश्किल है। पुरानी बाइक यहाँ पे बेचने आओ तो कोई पूछता ही नहीं है पुरानी बाइक के बारे में। और जो भी है वो बोलेगा जी आप अगर 50 की बाइक है तो बोलेंगे 30 ले लें, और नहीं लेने चले जाओ तो यहाँ पे 1.5 लाख से कम की कोई बाइक नहीं है। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे से डीलर्स भी परेशान हैं। कहते हैं कीमतें बढ़ने से मोटरसाइकिल की फरोख्त बुरी तरह मुतासर हुई है। कारोबार के हालात नहीं है, 3 दिन से 4 दिन से हो गए हैं, हम फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, परचेजिंग वाला कस्टमर नहीं है। जैसे ही नया मॉडल आता था सब लोग अपना पुराना मॉडल सेल करते थे तो आके नया मॉडल ले लेते थे। अब मेरे ख्याल से नए मॉडल कंपनी वाले जो है ना वो परेशान हो गए हैं, उनका इतना माल जो है ना नए मॉडल का सेल ही नहीं हुआ। डॉलर्स और खाम माल की कीमतों में इजाफे का बहाना बनाकर कंपनियों की जानिब से कीमतों में तारीखी इजाफा किया गया। साल 2022 में अवामी सवारी मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर अवाम की पहुंच से दूर हो गई। कंपनियों की जानिब से मुसलसल और गैर मामूली इजाफे ने अवामी सवारी का टैग भी छीन लिया। माहिरीन का कहना है कि महंगाई के हवाले से नए साल में भी खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। साल 2022 इख्तिताम पजीर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की पॉलिसीज़ कारआमद साबित हुई। लाहौर हाई कोर्ट में 1.5 लाख से ज़ायद मुकदमात के फैसले किए गए। ज़िला अदलिया में 27 लाख से ज़ायद मुकदमात के फैसले सुनाए गए।
मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की इनकलाबी इस्लाहात की बदौलत साल 2022 में सूबे भर की अदालतों में लाखों मुकदमात के फैसले हुए। लाहौर हाई कोर्ट में 1,56,000 से जायद मुकदमात के फैसले किए गए। लाहौर प्रिंसिपल पर 89,509 मुकदमात के फैसले हुए। फैसला शुदा मुकदमात में मजमूई तौर पर 52,000 सिविल मुकदमात, 38,000 के करीब फौजदारी और 85,000 से जायद रिट दरखास्तें शामिल हैं। जनवरी ta दिसंबर तक लाहौर हाई कोर्ट में 1,48,000 नए मुकदमात भी दायर हुए। इसी तरह चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की हिदायत की बदौलत पंजाब की ज़िलाई अदलिया में रिकॉर्ड 27,57,000 से जायद मुकदमात निपटाए गए। साल 2022 में 27,13,000 के करीब नए मुकदमात भी दायर हुए। ज़िलाई अदलिया में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 12,63,000 है। पूरे साल में सूबाई खसूसी अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में मजमूई तौर पर 78,000 के करीब मुकदमात के फैसले किए गए। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने लाहौर हाई कोर्ट और ज़िलाई अदलिया की शानदार कारकर्दगी को सराहा। चीफ जस्टिस का कहना था कि जल्द और मयारी इंसाफ की फराहमी के लिए लोगों के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब की बात करेंगे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की अपर मॉल पर डॉक्टर कामरान चीमा की रिहाइशगाह आमद, उनके वालिद खालिद महमूद चीमा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और दुआ मग़फ़िरत की। चौधरी परवेज़ इलाही ने सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार तासियत किया। वज़ीर आला ने मरहूम के साले सवाब के लिए फातह ख़ानी की। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अल्लाह ताला मरहूम की रूह को जवार रहमत में जगह दे। कुछ मौसम की बात करें तो आपको अपडेट करें। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। शहर लाहौर में शदीद धुंध का राज बरकरार। धुंध के बायस हवा में नमी का तनासुब 98% रिकॉर्ड किया गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। अब्दुल कादिर से बात करेंगे। अब्दुल कादिर, इस वक्त क्या सूरत हाल है? रात गए की अगर बात करें तो धुंध इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर सुबह सवेरे धुंध बढ़ती गई, अभी क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल अभी अगर धुंध की सूरत हाल पर बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर में जो है वो हर तरफ धुंध छाई हुई है। ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर भी गहरी धुंध होने की वजह से हद निगाह जो है इंतहाई कम हो चुकी है और सुबह सवेरे ये धुंध जो है वो गिरना शुरू हुई, जिसने अपनी शहर को अपने पूरे जो है वो लपेट में ले लिया। इस वक्त जो मवासलाती निज़ाम है वो भी बुरी तरह मुतासर है। शहरी इलाकों में जो सड़कें हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक जो है सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि हद निगाह जो है वो इंतहाई कम है। और कौमी शाहराहों की बात की जाए तो मोटरवेज़ जो लाहौर से मुल्हिका हैं वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को लाहौर से कोट मोहम्मद तक का जो सेक्शन है उसे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। इसी तरह जो M3 लाहौर मुल्तान मोटरवे है ये भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे लाहौर से सियालकोट तक इसको बंद किया गया। ये मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके तमाम सेक्शन जो हैं ट्रैफिक के लिए बंद रखे गए हैं। और इस हवाले से मोटरवे पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हद निगाह जो है इस वक्त 15 से 20 मीटर तक बताई जा रही है, जिसमें जो ड्राइविंग है वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। और मुसाफिरों की हिफाजत के लिए मोटरवेज़ को बंद किया गया। जब तक हद निगाह जो है 300 या 350 मीटर से ज़ायद नहीं होगी तब तक मोटरवेज़ को जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। इस वक्त बाबू साहब इंटरचेंज पर भी गाड़ियों, बसेस और ट्रकों की लाइनें जो है वो लगी हैं। मुसाफिर जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये धुंध चटेगी और इसके बाद जो है वो अपना सफ़र जारी रख सकेंगे। मौसम के हवाले से बात की जाए तो शहर का दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त कम से कम सतह यानी कि 4 सेंटीग्रेड पर जो है रिकॉर्ड किया गया और आज कम से कम 4 सेंटीग्रेड ही रहने का जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया गया था, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेंटीग्रेड जो है वो जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया। और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है और बारिश का इम्कान ना होने की वजह से धुंध और फ़िज़ाई आलूदगी जो है इसमें भी जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। धुंध के बाद ठीक है अब्दुल कादिर, आपने मौसम के बारे में अपडेट किया, शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट में साल 2023 की पहली दरख्वास्त दायर कर दी गई। शहरों में ग्रीन एरियाज़ के खात्मे के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में वफाकी और सूबाई हुकूमत, महकमे माहौलियात समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मोहम्मद अशफाक से बात करेंगे। अशफाक, नए साल की पहली पटिशन। एक्टिविज्म पैनल के सरबराह
شہروں میں گرین ایریا کے خاتمے کے خلاف موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تمام شہروں میں بہت تیزی سے گرین ایریاز کو ختم کیا جا رہا ہے. گرین ایریاز ختم ہونے کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوگا اور آئندہ سال اسموگ میں بھی اضافہ ہوگا. درخواست میں صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، محکمہ ماحولیات سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اور عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ عدالت متعلقہ حکام کو گرین ایریاز کی بحالی کے احکامات جاری کرے اور فوری طور پر گرین ایریاز کے خاتمے کے حوالے سے بھی حکم امتناعی جاری کرے تاکہ اس حوالے سے اسموگ اور آلودگی سے بچا جا سکے. شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا.